ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 565 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 316 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ 107 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ। 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। 70 60 70 ਕਈ ਵਾਰੀ 80 90 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਪਰ 70 ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 881 ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 200 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। बहादुर साहिब जी की 350वीं शताब्दी आ रही है। पटना साहिब कमेटी के क्या क्या प्रोग्राम हैं, एक यात्रा भी निकालने जा रहे हो, कौन कौन से राज्य में ये यात्रा जाएगी, क्या क्या तैयारी जो है वो की गई है पंजाबी बीच। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਧਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ 14 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬੜੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 9 ਤੋਂ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਣ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆ ਉਹ ਰਾਜਗੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਲ ਕੁੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਡਰਮਾ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਝਾਰਖੰਡ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ। ਲਾਸਟ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਸਗੰਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਥਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੇਨ रूट और इस दे नाल क्या बिहार सरकार भी सहयोग कर रही है इस यात्रा में?
बिहार सरकार तो देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिहार सरकार की तरफ से सिख समुदाय को खास करके, और पटना साहब का पहले जो हम लोग 350 साल गुरुजी का जन्म शताब्दी मना चुके हैं, उसमें भी बिहार सरकार का ऐसा इतना बड़ा योगदान रहा जिसको आज तक भी पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बसने वाले सिख इसको याद करते हैं, और इसकी गूंज मेरे ख्याल आने वाले समय तक सुनाई देती रहेगी। उसी की तर्ज पर ये जागृति यात्रा, जिसमें पूर्ण सहयोग की आस हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से रखते हैं, और वो हैं भी हमारे साथ। प्रचार का काम, प्रसार का काम ये सरकार हमारा कर रही है। जगह जगह जिधर से यात्रा जाएगी वो सब रास्तों को ठीक करना और आगे सरकार टू सरकार बात करना, ये हमारा जो है बिहार सरकार की जिम्मेवारी है और कर रही है। क्या सर एक जो संगत है उसमें एक भ्रम पैदा नहीं होगा? सभी तत्वों को एक साथ मिलकर यात्रा निकालनी चाहिए थी। नहीं, इसमें भ्रम की कोई बात नहीं, तो खुशी की बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि यात्रा अलग अलग तिथियों पर निकल रही है। ये यात्रा जो अभी हमारी यात्रा सबसे पहले निकलने वाली थी 31 अगस्त को, और एसजीपीसी की जो यात्रा है ये यात्रा तकरीबन सितंबर के आखिरी में निकलने वाली थी, पर उन्होंने पता नहीं क्या उनका कारण रहा, वो यात्रा उन्होंने इस समय शुरू कर दी है 21 अगस्त से। तो उनको देखते हुए कि कहीं रास्ता में हम लोगों का रूट क्लैश नहीं करे, इस तरह का सब मुद्दों को देखते हुए हमने अपनी यात्रा 15 दिन विलम्ब की। और ऐसी कोई बात नहीं, हमारे नौजवानों में काफ़ी जोश है। हम तो जगह जगह जाके इसके लिए मीटिंग कर चुके हैं, और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि यात्रा को कितना बड़ा hunगारा मिलता है। नहीं, लेकिन आप मानते हैं कि सभी तख्तों को मिलकर साथ में आकर इस यात्रा को निकालना चाहिए था? नहीं, तख्तों को मिलकर ही तो है। सबका मुद्दा एक ही है ना, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का शहीदी समागम को बहुत बड़े पद पर ले जाना। तो अलग अलग तिथियों पर कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से कर रहे हैं, और मुद्दा एक है। इसलिए इसमें कोई ये तो खुशी की बात है कि अलग अलग तिथियों पर होगी और संगत को ज़्यादा समय मिलेगा। तो दिल्ली में जब ये जागृति यात्रा पहुंचेगी, क्या उनको रकाबगंज आप रुकेंगे या फिर दिल्ली की अलग अलग संगत को इसके दर्शन जो है वो किए जा सकते हैं? नहीं, दिल्ली में हम लोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और माननीय हमारे सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी साहब से और हमारे बाकी सभी मेंबरों से मिलके इसके लिए बात करेंगे, और वो कितने दिन यहाँ पर ठहराना चाहते हैं और किस किस रूट में हमें योगदान देंगे। और बहुत बड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान है, और हम लोग भी उनके साथ योगदान दे रहे हैं। इसके बाद नवंबर को एक यात्रा निकलेगी फिर पटना साहब से, जो सिर्फ दिल्ली तक आएगी, शीशगंज साहब तक आएगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पटना साहब मिलकर निकालेगी, उसमें भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोग मिल के सब काम कर रहे हैं। तिथियाँ थोड़ी आगे पीछे हो रही, जिसमें अच्छा लगता है कि अगर कोई इस तिथि पर नहीं देख पाया तो अगली तिथि पर देखेगा। तो क्या इस जागृति यात्रा में गुरु महाराज से संबंधित क्या कोई उनके जो सत्र थे वो होंगे, वो किस तरीके से यात्रा होगी? देखिए, आपको पहले बताया ना कि श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के इतिहास के साथ में बहुत सी वस्तुएं, बहुत से ऐसे अनमोल चीज़ें जो हमारे तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब में सुशोभित हैं, जिसमें गुरु जी की खड़ाओं भी हैं। खड़ाओं को तो हम लोग बाहर नहीं ले जा नहीं सकते, क्योंकि पर डे वहाँ संगत दर्शन करती है। वहाँ शस्त्र हैं जो रोज़ हम लोग दिखाते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के हैं, बाल अवस्था के। वहाँ गुरु जी का कड़ा है जो गुरु के बाग में रखा गया है, कड़ा को ले जाने का प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। गुरु जी के समय के, उस समय के हथ लिखित गुरु ग्रंथ साहिब है हमारे पास 33, उसमें से जो वृद्ध और पुरातन श्री गुरु ग्रंथ साहिब है वो लेके जाएंगे। हमारे पास 33 से 35 तक हुक्मनामे हैं गुरु तेग बहादुर जी साहब के, वो लेके जाएंगे। संगतों को हुक्मनामे के बारे में जानकारी देंगे। और गुरु तेग बहादुर जी के शस्त्र जो पटना में तो नहीं है, किसी दूसरे जगह से हम लोग वो शस्त्र भी, जो ऐतिहासिक शस्त्र जो गुरु तेग बहादुर जी के हैं, वो भी इसका प्रबंध जो है हमारी जो टीम पटना पंजाब से काम कर रही है, वो प्रबंध उन्होंने पंजाब से किया है। और कहाँ से किए आने वाले समय में हम आपको बता देंगे।
तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब में हमारे पास बहुत शस्त्र हैं जो गुरु जी के समकालीन सिखों के हैं, शहीद सिंहों के हैं। उसमें आपको अलौकिक खंडा मिलेगा देखने लायक, तीर मिलेंगे और लंबी तलवारें मिलेंगी। वो सब हम साथ में ले जाके संगत को दर्शन कराएंगे और वो करने से संगत भी अपने आप को धन समझेगी।